Okay, we will also have some costing fundamentals for all the hotels property. Okay, hotel, restaurant, and all the entertainment houses. And next we will discuss in first unit outline of F&B cost control trend. Okay, so these things we will discuss in first unit more specifically. So here we just need to understand first the sales. That is the most important part. We have to understand sales to understand cost control. Okay, so there are various cost exist in the tourism and travel industry. Okay, for instance, labor cost, operational cost. एक्सक्यूज मी Yeah, सर। सर हमको ज्वाइन कर लीजिए सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था। मीटिंग रूम ब्लॉक है, अब ज्वाइन नहीं होगा, अब क्लास खत्म हो जाएगी ना तब होगा ज्वाइन। ऑपरेशनल कॉस्ट, नेक्स्ट वी हैविंग ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद मार्केटिंग कॉस्ट, then we will have these costs, most specifically we will discuss in the lesson. Okay, so this is the basic outline for unit 1 F&B which we are going to learn. Okay, so moving to the slides. Okay, slide visible to all, please confirm. Yes, sir. Yeah, yes, okay, so uh, by this slide we will understand the cost and sales concept first. Okay, so this is the food and beverages cost control. So this is the introductory part. The successful restaurant personnel includes chef, restaurant managers, food and beverages controller, dining room manager, steward, have ability to keep cost at predetermined levels. Okay, predetermined level means already fixed. We have already determined the cost prior to selling. Okay, and they understand that successful operations require that cost be carefully established and monitored so that profit will result. So next point is food and beverages and labor cost, which we have already discussed in our previous in our whiteboard. And labor cost generally represent between 60 and 70 ratio. Okay, so food and beverages and labor cost generally represent 60 to 70%. Okay, labor cost and the food and beverages cost, this whole represents 60 to 70% part of the total cost in any restaurant operation. If these costs are not carefully established and monitored, they can gradually increase until profit is eliminated and losses are sustained. So in this points, we will have some understanding that we will see all the restaurant staff, restaurant manager, including chef, steward, and waiter. Okay, restaurant manager,
So these peoples are sole responsible to control the cost of the food and beverages. Okay, so they are having a ability to keep the cost predetermined, which means we need to understand predetermined. They determine the cost with regards to the फूड एंड बेवरेजेस एंड द लेबर कॉस्ट वट यानी कि हमारी जो कॉस्ट लग रही है फूड एंड बेवरेजेस, चाहे ऑपरेशनल कॉस्ट हो, चाहे हमारा जो लेबर में जितना हमारी वर्क फोर्स है, इंक्लूडिंग जो हमारा डोरमैन है और हमारा वेटर है, सर्वर है, ठीक है, और रेस्टोरेंट मैनेजर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स वाले पार्ट हैं, उनको सबको लगा के जो हमारी कॉस्ट होती है उससे हम डिटरमाइन करते हैं इनकी जो टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन बाकियों का उतना परसेंटेज नहीं होता जितना फूड, बेवरेजेस एंड लेबर कॉस्ट का होता है। दीज थ्री थिंग्स प्ले वाइटल रोल टू डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन द रेस्टोरेंट। ओके, सो लेबर कॉस्ट एंड द फूड एंड बेवरेजेस कॉस्ट जो हमें इसमें लागत आई है फूड एंड बेवरेज में और लेबर में, उसका जो पार्ट होता है वो 60 से 70% होता है किसी भी रेस्टोरेंट को ऑपरेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, if I wish to establish a new restaurant, okay, in any specific area, okay, so to establish the new restaurant or new food court, I have to understand what is the cost we need to put for the initial for start the business. Okay, so I need to calculate all these cost. What is the labor cost? अगर मैं sales के लिए रखूंगा तो कितने पैसे देने होंगे, ठीक है, और स्टीवर्ड को कितने देने होंगे, सर्वर को कितने देने होंगे, वेटर को कितनी तनख्वाह देनी होगी, या फिर उसको रेस्टोरेंट मैनेजर होगा उसको भी रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगी, और डोरमैन होगा उसको भी पैसे देने होंगे, उसके लिए क्या कॉस्ट होगी। और उसके बाद मैं देखूंगा कि फूड एंड बेवरेजेस में क्या लागत आएगी, जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो शेफ होगा वो उसको कितने पैसे देने होंगे, और वो जो मटेरियल हम लाएंगे उसकी क्या कॉस्ट रहेगी। सो ये कॉस्ट ही 70 से 60% डिसाइड कर देती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर उसकी बात करें, मोमोज की बात करें, हम मोमोज खोल रहे हैं, अगर रेस्टोरेंट में मोमोज सर्व कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल हमें क्या कॉस्ट पे पड़ रहा है और शेफ की क्या फी है बनाने की, तो वही डिसाइड करती है कि इसकी मोमो की क्या कॉस्ट रखी जाए। ओके, बाकी वो आपका लोकल एम्बियंस भी प्ले करता है रोल कि आपका लोकेशन क्या है, ठीक है, आपका जो रेस्टोरेंट का या फिर आपका जो फूड कोर्ट है उसमें आपका एम्बियंस कैसा है, ठीक है, वेल मैनेज्ड है नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है नहीं है, वो भी डिसाइड करता है कि आपका कॉस्ट क्या होगा। लेकिन उनका उतना पार्ट नहीं होता जितना इनका होता है। दीज आर दी क्रूशियल पॉइंट टू डिसाइड दी कॉस्टिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। एनी रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में, ढाबे में, कहीं भी जाएंगे आप, सब में ये ज्यादा रोल होता है इनका। ओके, सो मूविंग टू अदर स्लाइड। Next slide is okay. So the cost concept. So here the learning objective of the cost control. First is define the term cost of the sales and the sales. So these two terminology are different from each other, cost and the sales. And then we will learn define the provide an example of the following types of cost: fixed, directly variable, semi variable, controllable, non controllable। ओके, यहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी भले भले ही इतनी भारी लग रही होंगी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इतना कुछ है नहीं इनमें। कंट्रोलेबल वेरिएबल वो होंगे जो हम जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कर सकते हैं कि स्टाफ। यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, वो 6:45 बजे से कोशिश कर रहे थे। वेट अ मोमेंट। ओके, सो define and provide an example of the following types of cost: fixed directly cost, fixed direct variable, semi variable, controllable, non controllable, and unit total, prime, historical and planned. Okay, so here we will try to understand some basic thing of the fixed directly variable, semi variable, controllable, non controllable. So these all terminologies we will discuss in upcoming classes, because these variables are
playing vital role to plan or to fix to or to prepare the costing for the specific product. Okay, so here we can see the controllable, non-controllable, semi-variable. These all variable. Controllable means uh, those variables which we can control. For example, we can control our work staff. Okay, our sales force. अपने हम स्टाफ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अगर 10 जगह की 10 लोगों की जहाँ पर जरूरत है, हम वहां पर 5 से काम चलाएं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो मेंटेन रहे। पहला तो ये। नॉन कंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, टैक्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी चीजों पे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा जो हमारा लोकल प्राइसिंग का जो है, कंपटीशन का जो आसपास के हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, उनकी प्राइसिंग क्या चल रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमको उनके अकॉर्डिंग ही प्राइस रखना पड़ेगा। ये ऐसा भी नहीं है कि हम वो 100 रुपए का एक प्लेट दे रहे हों और हम 200 का दें, तो हमें अपना जो कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारा बिजनेस में बहुत इफेक्ट होगा। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये तो सबके ही म्यूचुअली डिस्टेंस से चलेगा, ठीक है ये। और फिर आएगा यूनिट, total, prime control, historical and plan. These all thing we will discuss in upcoming classes. Okay, and third point is provide several example illustrating monetary and the non-monetary sales concept. Okay, so we are having a monetary and the non-monetary sales concept in the cost control concept. Okay, so describe the significance of cost to sales relationship. Okay, so cost का sales पे क्या relation है, ठीक है, या sales का cost पे क्या relation है, we will also signifies these thing as well in the upcoming slides. And identify several cost to sales. Identify several cost to sales ratios important in food and beverages management. Okay, so here we will learn two things. First is significance of the cost in sales, or yeah, sales. What are the impact of the cost in sales, or what are the impact of the sales in the cost. And next thing we will learn the identify several cost to sales ratio. Okay, which means हमें cost क्या होनी चाहिए, sales क्या होनी चाहिए, इसमें कितना रेशो होना चाहिए, ठीक है, यानी हमने अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया है तो हम उसको सेल कितने में करें, हमारी 100 की लागत है, कॉस्ट में वो होगा जो हमारी लागत है, और हम उसको कितने में सेल करें। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे के क्लासेस में लर्न करेंगे। Next is identify the formulas used to compute cost percentage. Okay, so here we will calculate some formula, calculate some percentage and the sales price with the help of formulas. Okay, so यहाँ पर हम sales का price और cost compute करने के लिए, यानी calculate करने के लिए हम कुछ formula का सहारा भी लेंगे, उनको identify करेंगे। Describe factor that cause industry-wide variation in the cost percentage. Okay, so here we will describe factors which are highly cause or highly affect to the cost percentage. Okay, for instance, if we are talking about this establishing a new restaurant in a specific area, so we need to understand what are the factors which is highly affected, which is highly impacted to our business. Okay, for instance, we can understand that we are having a short of labor. Okay, and the labor cost is very high, we are not able to find labor in our suitable pricing bracket. Okay, which means अगर हमने 10,000 का रेशो रखा है सेल्स में सैलरी देने का एक शेफ का, तो हमें उस ब्रैकेट में कोई मिल ही नहीं रहा है, तो these some factor we need to identify while we are taking a cost control thing. Okay, समझ आ रहा है सबको ये? Okay, so next we will explain the value of comparing current cost to sales ratio with those are previous period, which means हमें वो चीजें देखनी होंगी जो हमारे previous period में, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर चलते हैं,
March, April 1st to 31st March. Okay, so we need to understand what are the previous factors which have greatly affected to our business, so that we can prepare our cost accordingly. Okay, keeping in mind those factors which we have seen in previous year. Okay, यानी कि इसमें हम वो देखेंगे कि हम अपनी जब कॉस्टिंग डिसाइड करेंगे तो हमें जो प्रीवियस फैक्टर थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको शेफ का बताया, और भी फैक्टर हो सकते हैं, हमारा कंपटीशन एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो किस तरह से आ रही है, वो भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बिजनेस को। क्योंकि यही चीजें हमारी, एक चीज और होती है जो होती है मेनू फॉर्मुलेशन। जब आप मेनू प्रिपेयर करते हैं तो मेनू में आपकी किस तरह की चीजें इंक्लूड की हैं या नहीं की है, वो उसका भी काफी रोल होता है आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, या फिर आपको कॉस्ट के डिजाइन करने में। आपने हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन सेकंड में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि मेनू का कितना इफेक्ट होता है। एक मेनू कार्ड का भी काफी इफेक्ट होता है किसी रेस्टोरेंट के बिजनेस को चलने में या नहीं चलने में, ठीक है। तो वो वाइटल रोल है उसका मेनू का, ऐसे ही नहीं होता वो एक दिखने में तो एक छोटा सा कार्ड ही दिखता है वो। ओके, नेक्स्ट the concept of the cost. Okay, so here we will learn the some concept of the accountants, F&B. Okay, so in this slide we will discuss the cost concept. First is accountants. So accountants defined as a cost as a reduction in the value of an asset for the purpose of securing benefit or gains. Can you please define the concept of the asset and liabilities? जिन्होंने accounts पढ़ा हुआ है पहले, ये एसेट लिखा है यहाँ पे, एसेट, एसेट एक एसेट है, एक लायबिलिटी है, बताएगा कोई? सर मैं बताऊं क्या ना है? यस यस प्लीज गो अहेड। सर जो असेट्स होती है वो हमारी संपत्ति होती है, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग जिसमें भी एज अ प्रॉपर्टी। और जो हमारी लायबिलिटीज होती है वो हमारे दायित्व होते हैं कि हमें यहाँ पर पे करना है, ये हमारे ऊपर डेबिट है। और बहुत सारी अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसका पे करना है, मतलब आप समझ रहे हो ना सर, अलग अलग तरह की लायबिलिटी जो हमको पे करनी है। और असेट्स हमारी खुद की, हमारी संपत्ति, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, एज अ बिल्डिंग, एज अ लैंड, कुछ भी हो सकता है वो। हम तो समझ रहे हैं, ये बाकी समझ रहे हैं आपके साथ के साथी लोग? आप सब समझ सर रहे हैं? इन शॉर्ट में लायबिलिटी को कर्जा बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई कर्जा है तो हमें वो कर्जा पूरा करना है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई लोन लेते हैं तो हमें उस लोन को पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। और असेट्स वो चीज हो जाती है जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, भली वो लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, मशीनरी हुई, तो वो सब हमारी असेट्स होती हैं जहां हम रुपए लगा रहे हैं। अच्छा, बाकी को समझ में आया ये? To go all the houses, so we need to keep on our sales. Okay, so इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें उनको डिजिटाइज करना पड़ेगा, अपने जो स्टाफ है उनको डिजिटली हमें साउंड करना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्ट ना हो और वो उनकी सेल्स कंटिन्यू रहे। तो ऐसे में हम खर्चा होगा नहीं होगा, इसमें हमें ट्रेनर बुलाने पड़ेंगे, वर्कशॉप्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन देने पड़ेंगे, तो वो खर्चा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मतलब मंथली तो सैलरी दे ही रहे हैं, उसके बाद भी तो हमें खर्चे लग रहे हैं ना, तो वो लायबिलिटी में नहीं हुए ऐसे। यस सर।